बेंगलुरु 27 नवंबर 2025 इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा आयोजित बियॉन्ड गाइडेंस अ सीरीज ऑफ वर्कशॉप्स के अंतर्गत यूथ पार्लियामेंट वॉइसेस ऑफ टुमारो का भव्य उद्घाटन आज बेंगलुरु में किया गया। ये कार्यक्रम कबीर इन पीयू कॉलेज आरटी नगर में सुबह 11 बजे से आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक विधानसभा के माननीय सभापति श्री यूटी खदर ने शिरकत की। उन्होंने युवा वर्ग को लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व क्षमता और संवाद कौशल को मजबूत करने की दिशा में प्रेरित किया। इस अवसर पर गेस्ट्स ऑफ ऑनर के रूप में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें शामिल हैं शेख डॉक्टर साबिर अली उमरी, इमाम और खतीब मस्जिद बेंगलुरु नॉर्थ 3 श्री अब्दुल वाजिद, चेयरमैन बेंगलुरु नॉर्थ जिला कांग्रेस समिति श्री चुना रफी अहमद, अधिवक्ता एवं प्रोप्राइटर। CRA कन्वेंशन हॉल कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सामाजिक मुद्दों, नीति निर्माण और संसदीय प्रक्रियाओं की समझ प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य में सकारात्मक और प्रभावी नेतृत्व का निर्माण कर सकें। इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसका कार्यालय कौसर नगर आरटी नगर बेंगलुरु में स्थित है, समाज में जागरूकता, शिक्षा और मार्गदर्शन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। युवाओं की आवाज को दिशा देने वाली ये पहल बेंगलुरु में एक महत्वपूर्ण सामाजिक और शैक्षणिक प्रयास के रूप में सराही जा रही है। Imagine a bottle you throw away today, still lying on earth hundreds of years from now. Our oceans are choking with plastic, animals are dying because of it, and microplastics are now entering our food and water. Plastic was once a convenience, today it is a crisis. Every plastic bag, straw or wrapper we use for minutes stays with our planet for centuries. Good morning to one and all present here. Today I rise with the voice that echoes the struggle of ordinary people, the vendors, the shopkeepers and the daily earners, all of whom are facing the heat of this unplanned plastic ban. मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगी, क्या आज हम हमारे देश में सडन बैन लगा के देश को रोक देंगे या जिम्मेदारी और सोची समझी पॉलिसीज का उपयोग कर हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे? Instead of creating proper recycling systems, segregation units and affordable alternatives, we have simply told people to manage on your own, and that's not fair. जनता से उम्मीद पर सरकार से कोई मदद नहीं, ये कैसा न्याय है? There is no proper proof, or even the World WHO has agreed that WHO has proven in 2018 that microplastic causes cancer and heart diseases. Alternatives for all of these concerns. Improved waste management can also be applied. Proper waste disposal are also being held. Many companies are also providing more stuff that we can trees and roads. It makes the whole area look unhygienic. Many people pack hot from work, some milk. So, both the discussions are very good as far as banning is easy, but the implementation is difficult. But ban is necessary. Then 100% ban doesn't take one day only. So it takes time to time. So automatically a ban is not only come with ban also. Awareness also to prevent. For what happens if you ban, if I'm using, there is that, oh it is bad, I shouldn't use. But if there is no ban, there is nothing that people are, why there is no ban, or then why can't we use, why can't we throw? So both the discussions were very good. I congratulate both the teams for your discussions, and not only this, the awareness should be given to the public concerning the preventive one thing, and
use of plastic should be avoided as much as possible. 100% is not possible because some places we have to. Without plastic, they can't. So the people have a discussions. How can you ban? And without for this we use it. Ban is not only full stop, but awareness of it. It will restrict someone that we shouldn't use that. So I think this both should go together. So your awareness in the public also is very much important concerning the plastics and concern the environment also. And all the participants also I congratulate because you can be an engineer, you can be a doctor, you can be an advocate, and you have to be a good representative also. Language lab for the students. Our students, whatever language you get a chance to learn, you should learn. You should learn Kannada, Hindi and English very well. Along with that, German, Spanish, Korean, Japanese, French, whatever language possible you should learn. Arabic, because if you go to Germany, no one talks English there. If you go to Korea, no one talks English there. If you go to Japanese, they talk only Japanese. If you go to Spanish, they don't know. Only English ruled countries, few countries only, they only talk English. So we think that everyone knows English, if I learn English, that is enough. That's not enough. If you are good talented also, if you don't have a language, they won't give the job. So when you are small only, you should see that whatever possible way, whatever language you get an opportunity to study, that you should take it as a self-interest. So wishing you a bright and colorful future. So please visit our Vidhan Saudha also. See the beauty of Bina and Damak is lively there only. So welcoming you there and thanking you and all the management and this team of Islamic Information Center, schools and its management. Thank you. Jai Hind. I appreciate the effort and commitment of Dr. Zoeb Javed of the Islamic Information Center for conducting a mock parliament for the students. I think this is very important for the younger generation to take active participate in the democracy system of India. It is very good subject was given to them and they have discussed very well. And I am sure that all this discussion will be indebted in their personality. Wherever they go, when they concerned about the environment, they'll be more not only active, they'll be proactive for the working for the betterment of the society. So this such of activity is very important in the schools and colleges. So they discussed plastic ban. Yeah. And when you were the health minister, you... I only banned. You are the judge, sir, that's what they are asking. Yes, we only banned during the lot of discussion. The same thing was there. Whether can we implement, 100% implement. So we have kept a grade for that, so many microns. And second thing, a ban doesn't mean that 100% no one will use. But it will be reduced. By the time to time go after 5, 10, 15, 20 years, it will be completely stopped. Otherwise, there is no stop at a continuous will be. So it is not only ban doesn't mean you stop immediately. You stop, along with that, and suddenly it will be difficulty. But it is awareness not to continue it. So if there is a ban, if you are going to use it, you know that it is banned, you shouldn't use. So it is like indirectly incentive to on the longer range to cut it completely. मुनक़द किया था, मंच मुनक़द किया था जिसमें हमारे स्पीकर साहब यूटी खादर साहब आए थे। तो दो ग्रुप्स उन्होंने बनाई थी, एक जेंट्स की एक लेडीज़ की, और दोनों में एक जिस तरह से सेशन में बात होती है यानी कि बहस होती है, डिस्कशन होता है, उस तरह से इन्होंने डिस्कशन किया था। ख़ासकर ये प्लास्टिक के ऊपर डिस्कशन हुआ और खादर साहब ने पूरा सुना और उन लोगों को बताया कि किस तरह आगे चलकर आपका मुस्तकबिल होना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। तो मैं शोएब भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इन्होंने इनिशिएटिव किया। मैं समझता हूँ पूरे स्कूलों में
इस तरह का एक डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्लास्टिक जो है जो एनवायरनमेंट और सेहत के लिए दोनों के लिए हार्मफुल है, तो एक राय यहाँ पर भी है कि वो उसे बैन होना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्लास्टिक तो कंप्लीट बैन हमने करवाई थी जब हम कॉरपोरेशन में थे। हमारी मेयर थी गंगामिका और मैं था रूलिंग पार्टी लीडर, और हेल्थ मिनिस्टर भी थे हमारे खादर साहब। हमने कंप्लीट बैन बेंगलोर में करवाया था प्लास्टिक का, और बहुत से रेड भी करवाए थे। प्लास्टिक एक बहुत ही ख़राब चीज़ है जो कभी पिघलती नहीं है। वो उसको हर तरह से बैन करना बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर एनवायरनमेंट में बहुत इफ़ेक्ट होता है इसका, तो पूरी दुनिया में इसके पीछे काम हो रहा है। जैसे कि खादर साहब ने बताया कि प्लास्टिक को कंप्लीट बैन एक ही दम नहीं हो सकता है, स्टेज वाइज करना चाहिए। मैं आज़ादाने गुजारिश करता हूँ हमारे लोगों से, ख़ासकर हमारी माँ बहनों से, कि प्लास्टिक को कभी यूज़ मत करो। पेपर यूज़ करो, पेपर का बैग यूज़ करो, कपड़े का बैग यूज़ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। मैं सबसे पहले अल्लाह के शुक्र इम्तिनान के बाद इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर और इससे मुताल्लिक़ अहबाब और मुसलिकीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यूथ के लिए, नौजवानों के लिए एक प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर, ताकि उनको एक फ़ील हो, एहसास हो, पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट के नाम से शुरू किया। सिर्फ़ यहाँ और इससे मुताल्लिक़ स्कूलों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए है, ये सबके लिए पैगाम है। आएँ या प्रैक्टिस करें, मालूम करें, वो शऊर और एहसास हो, फीलिंग आए। तो यूथ क्या है? सबसे पहली बात यह है कि यूथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेशन। जिस कौम के यूथ, नौजवान लिखी पढ़ी ज़्यादा है, वही कौम लिखी पढ़ी है। जिस कौम के नौजवान यूथ आगे हैं, तरक्की याफ्ता है, वो कौम आगे है, तरक्की याफ्ता है। जिस कौम के यूथ, नौजवान सबसे अच्छे हैं, वो कौम सबसे अच्छी शुमार की जाती है। जिस कौम के यूथ और नौजवानों के पास सलाहियत, काबिलियत ज़्यादा है, वो कौम सबसे ज़्यादा सलाहियत और काबिलियत वाली होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर नबी को अल्लाह ताला ने नबूवत जो अता फरमाई है, वो 40 साल की उम्र, जो कि जवानी और यूथ के सबसे आखिरी स्टेज है। उसके बाद बुढ़ापा या अधेड़ उम्र के का आगाज़ होता है। नबी के जितने साथी थे सहाबा इकराम, उनमें से अक्सर व बेशतर की उम्र जवानी की उम्र थी। और अल्लाह ताला ने तकरीबन नबी उनके साथियों के ताल्लुक़ से जो ज़िक्र किया है, वो यूथ का ज़िक्र किया है। यूथ, नौजवान। अभी मैंने आपके सामने सूरह कहफ की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। वो तो चंद नौजवान ही थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि फ़तह युद्ध कर, एक नौजवान जिनका नाम इब्राहीम है। तो नौजवानों को याद रखिए कि आप ये कौम के फ्यूचर है, आप कौम के पहचान हैं। आप ही के ज़रिए से आगे कौम के फ्यूचर और आपके कौम के जो मेयार है उसकी सही माने में तहक़ीक़ होती है और उसका मेयार मुतय्यन होता है। इसलिए मैं पैगाम यही देना चाहूँगा कि यूथ अपने आप को मुख्तलिफ़ जो शैतानी और गैर समाजी चीज़ें हैं, जैसे कुछ गलत दोस्ती, गलत लिटरेचर में मुब्तला होना, गलत आदतें, ख़ास तौर से जो ड्रग्स और ड्रग्स से मुतालिक चीज़ें हैं, नशा और नशावर चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहकर आपकी ये जवानी एक अमानत है, अमानत है अल्लाह की तरफ से। कल क़यामत के मैदान में इंसान की उम्र के बारे में सवाल होगा, 5 में से। उम्र में, एज में जवानी खुद आ गई है, मगर उसके अलावा भी अलग से कहा गया वन शबाबी ही फ़ीमा अबला। जवानी के बारे में सवाल होगा कि तुमने अपनी जवानी कहाँ बिताई है, कहाँ तुमने इस जवानी को सर्फ किया है। जवानी की उम्र बहुत अहम उम्र होती है, इसलिए इसकी कदर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर से यूथ पार्लियामेंट इनिशिएट किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तहत ये एक शोबा है उनका।
द कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे एक यूथ पार्लियामेंट सेटअप किया है कबीर पीयू कॉलेज में। मकसद इसका ये है कि बच्चों को जो है एक पार्लियामेंट का सेटअप मिले, एक फील मिले, ताकि जो है बच्चे डिबेट कैसा करना है, रिसर्च कैसा करना है, क्या टॉपिक्स पे बात करना है, तो उनको अगर एक फील मिला, जैसे ऑपोजिशन लीडर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने, तो एक फील जो एक पॉलिटिकली जो एक हमारे नौजवान जो है पॉलिटिक्स को उतना करियर नहीं मानते और उसे समझते नहीं कि इसमें जो अच्छाई है वो नहीं लेते। यूजुअली लोग क्या समझते हैं कि पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं है या फिर काम नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन से जो फ़ायदा सोसाइटी को और नेशन को होता है वो बाकी सब फील्ड से बहुत ज़्यादा है। अगर ये सोच सब में आ जाए, ख़ासकर हमारे नौजवानों में, और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दिया गया है कि यहाँ पे वो प्रैक्टिस करें ताकि वो फ्यूचर लीडर्स बन सके। एक दूसरा ये है कि ये जो इनिशिएटिव्स है ये सिर्फ हमारे स्कूल के लिए नहीं है, हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं है। दिस इज़ अक्रॉस द स्कूल्स दैट आर देयर इन बैंगलोर और आउटसाइड बैंगलोर एज वेल। बैंगलोर के बाहर भी जो बच्चे हैं वहाँ पर यहाँ पे आ सकते हैं, दूसरे कॉलेजेस के भी स्टूडेंट्स हैं, स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारा अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर दे ताकि दूसरे स्कूल्स के साथ क्लैश ना हो, बस यही मकसद है। टाइमिंग्स देंगे तो यहाँ पर आके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सेटअप देख सकते हैं यहाँ पर के ग्रीन मैट बिछाया गया है। मकसद क्या है उसका, लोकसभा में रूल ये है कि ग्रीन मैट रहे, तो वैसे हमने थोड़ी डिटेल्स जानकर जो है सही तरीके से, ताकि बच्चों को एक फील आए तो प्रैक्टिस करें। तो हम हर स्कूल को इनवाइट करते हैं, उनके मैनेजमेंट को ये दावत देते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ भेजें, प्रैक्टिस करवाएं, इस जगह का भरपूर इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जो है हमारे फ्यूचर लीडर्स बन सके, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सके। ये कॉन्सेप्ट के साथ आज लॉन्च किया गया और मैं स्पेशली श्री यूटी खादर साहब का शुक्रगुजार हूँ, अपना वक्त निकाल कर आए, और दूसरे डिग्निटरीज जैसे अब्दुल वाजिद सर यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं वो भी आए, शेख साबिर अली उमरी वो भी आए, दूसरे दीगर डिग्निटरीज जैसे CRA के ओनर हैं चुना रफ़ी साहब वो भी आए। दूसरे कुछ अपनी मसरूफियात के वजह से नहीं आ सके, वो अपडेट किए हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आएंगे, देखेंगे। लेकिन ख़ास हमारा इन्विटेशन स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए है और मदरसा स्टूडेंट्स के लिए भी है, ताकि उनको भी प्रैक्टिस हो, उनको भी पता चले दीन और दुनिया दोनों वो कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट पे ये लॉन्च किया गया है। इसके लिए कोई फीस वगैरह रखी गई है? एब्सोल्युटली फ्री है, ये कोई फ़ी नहीं है, सिर्फ आपको टाइम ब्लॉक करना है, डे ब्लॉक करना है, आपको यहाँ पे सेटअप रेडी मिल जाएगा, अभी से शुरू कर सकते हैं। सीटिंग कैपेसिटी कितनी रहेगी सर इसमें स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ऑपोजिशन में हमारे पास 9 या 10 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, और रूलिंग पार्टी, गवर्निंग पार्टी में जो है प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ऐसा करके उनके साथ 1 और 3 बच्चे बैठ सकते हैं, यानी कि 10-10 की कैपेसिटी है। प्लस ऑडियंस भी आ सकते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ टीचर्स या पेरेंट्स भी आ सकते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। अगर पेरेंट्स इंटरेस्टेड है, अगर कोई टीचर्स या स्कूल से इनिशिएटिव नहीं ले रहे, तो पेरेंट्स कैन कम, दे कैन ऑल्सो वॉक इन इंडिविजुअली, गेट देयर स्टूडेंट्स, एक ग्रुप बना ले सकते हैं फ्रेंड्स के, वो भी आके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। संडे भी अवेलेबल रहेगा सर? यस, अगर आप आना चाह रहे हैं संडे भी अवेलेबल है, फैसिलिटी विल बी ओपन। हमारे हर फैसिलिटीज़ जो है रात तक काम करते हैं, सो यू कैन कम ऑन संडेज ऑल्सो, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द फैसिलिटी। लोकेशन ये जो है कबीर पीयू कॉलेज में है, ये मटनहल्ली राधा कृष्ण थिएटर के पास है। कबीर पीयू कॉलेज में आर्ट्स एंड कॉमर्स 2 सेक्शंस है, तो गर्ल्स कॉलेज है, तो यहाँ पर आप सेफली आ सकते हैं, सेफ्टी है, और क्या है यहाँ पे स्टाफ भी रहेगा आपको हेल्प करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए।